Hello student, I welcome you all to the one more video lecture of your fourth chapter in environmental management. Okay, last lecture we study about the environmental conservation or social responsibility. Okay, then last lecture we discussing the law act about the environmental conservation. So today we are going to learning about the environmental conservation and the biodiversity. Okay, then we are discussing the three types of biodiversity, that is genetic biodiversity, ecosystem biodiversity, species biodiversity, and also we are discussing today a scare groups. इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले. Okay, so let's get started. Now we are discussing about the environmental conservation and biodiversity. Okay, biodiversity means what? Biodiversity means variety of plants and animals. Okay, जहाँ पे बहुत सारे plants रहते हैं, animals रहती है, उनकी life रहती है. Okay, on that particular world that called as a biodiversity. Okay, ये plants animal जहाँ पे रहते हैं, उनका जहाँ पर habitat है, that is called as a biodiversity. Okay, so most harmful effect of an environmental pollution occur on the living organism. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, जीने वाले, सर्वाइव करने वाले, उनके ऊपर सबसे हार्मफुल इफेक्ट होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का. दैट यू नो. आर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स. हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो अभी रिचली डाइवर्स हो चुका है. और ये लिविंग वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वैरायटीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट करते हैं ये लिविंग वर्ल्ड में. It consists of a varieties of plants and animals. Okay, so however we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generation. See, हम लोग सुनते हैं हमारे बड़ों से कि जो लेपर्ड होता है ना वो बहुत तेज होता है, वो बहुत तेज़ी से भाग सकता है, रैपिडली वो भागता है, बहुत दूर तक छलांग लगा सकता है. ऐसे हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन लेपर्ड को हमने अभी इजीली देखा नहीं है. डिस्कवरी एंड ऑल चैनल पे हम सिर्फ देखते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स है, लेकिन हमने अभी नेचुरली उनको कभी देखा नहीं है. बिकॉज ये लेपर्ड्स अभी एक्सटेंट हो गए, अभी ये है ही नहीं. लेपर्ड की स्पीशीज़ कम हो गई है. ये पोल्यूशन के रीजन से लेपर्ड की स्पीशीज़ कम हो रही है. और जो ये डिफॉरेस्टेशंस करते हैं, हम जंगल को, फॉरेस्ट को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारे आँखों के सामने ये स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है. बहुत सारे स्पीशीज़ नष्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस एनिमल्स और प्लांट्स. ये क्या है? हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट. Biodiversity is the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystem and genetic variations within a species. तो एक ही स्पीशीज़ में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. तो अभी स्पीशीज़ को कंजर्व करना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केयर करना, अपने इकोसिस्टम की, अपने एनवायरनमेंट की केयर करना. इट मीन्स द इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीशीज़ है. जेनेटिक वेरिएशंस होता है, जेनेटिकली वो अलग होते हैं, उनमें वेरिएशंस आते हैं. तो ये इकोसिस्टम में जेनेटिक वेरिएशंस होता है हर एक स्पीशीज़ में. सो हमारे बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. आर बायोडाइवर्सिटी इज द रिचेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. So these biodiversity occur at 3 different level. Okay, biodiversity 3 different level में होती है. तो आइए देखते हैं कि ये 3 different level कौन से होते हैं. ओके, आज के लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी के 3 different level डिस्कस करने वाले. ओके, so let's get started. Now we are studying the 3 different level of biodiversity. Okay, so there are 3 types of biodiversity. First one is a genetic diversity, second one is a species diversity, and the last but not the least is a ecosystem diversity. Okay, so diversity के कितने types है? 3 types है. First is a genetic diversity, second one is a species diversity, and the third one is a ecosystem diversity. Now we are studying in detail about these 3 diversities. Okay, genetic diversity, species diversity and the ecosystem diversity. ये different biodiversity कैसी होती है, क्या होता है उनमें, कैसे फॉर्म हो गई है, ये आज हम डिटेल में पढ़ने वाले. ओके, सो लेट्स सी. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी
टाइप ऑफ डाइवर्सिटी फर्स्ट इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, जेनेटिक मतलब क्या? जेनेटिक मतलब जीन का डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस. जीन के डाइवर्सिटी में जो डिफरेंसेस है उनको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, जेनेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डाइवर्स रहते हैं, that is called as a genetic diversity. Okay, so genetic diversity is important because it help to maintain the health of a population by including all as that may be, okay, valuable in a diseases. Okay, so genetically organism कैसे diverse होते हैं वो हम आज डिटेल में पढ़ते हैं. See, occurrences of diversity among the organism of same species is a genetic diversity. मीन्स एक ही स्पीशीज़ होती है बट उनमें भी बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं, तो उसे बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. मीन्स एक ही स्पीशीज से दूसरा ऑर्गेनिज्म बहुत सारे वैराइटीज़ फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ एक ही रहती है, जात एक ही रहती है, लेकिन उससे बहुत सारे वैराइटीज़ फॉर्म होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बीइंग इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर. सी, हम कैट का एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, कोई कैट ब्लैक कलर की होती है, ओके, तो कभी कैट वाइट कलर की होती है, तो कभी ब्राउन कलर की भी कैट होती है. सो दैट इज़ अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. सी, कैट ही है बट उनमें बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस आए. सब एक ही तरह की कैट है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस थ्रू एवरी कैट का कलर डिफरेंट हो जाता है. कभी ब्लैक कलर की कैट होती है तो कभी ब्राउन कलर की कैट होती है और कभी वाइट कलर भी होती है. ओके, कलर्स में वेरिएशंस आया. क्यों? क्योंकि उनके जेनेटिकली क्या है, उनमें वेरिएशन आया. लेकिन स्पीशीज़ कैट ही है, स्पीशीज़ ही है, लेकिन उनमें वेरिएशंस आते हैं. सो दिस इज़ अ डिफरेंस ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन. ओके, तो एक ही स्पीशीज़ में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है. ओके, ह्यूमन का वैसा ही है. ईच ह्यूमन बीइंग डिफर फ्रॉम ईच अदर. ये ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ड्यू टू दिस जेनेटिक वेरिएशंस एंड दैट इज़ अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम एक स्पीशीज़ है, होमो सैपियंस है. ओके, लेकिन हम सब सेम दिखते हैं क्या? नहीं, हमें कुछ वैरायटी आई है ना. हम हमारे मॉम डैड जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे जीन में क्या ये है, वेरिएशंस आए. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. See, the possibility of wiping out the species arise if there is a decrease in the diversity within the species whose member involved in sexual reproduction. अगर वो डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो वो स्पीशीज़ को एक खतरा होता है. ओके, वो स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय होने का, नष्ट होने का एक खतरा होता है अर्थ में से. तो इस ड्यू टू दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस, डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए. ओके, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट डाइवर्सिटी वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ मतलब क्या? प्रजाति. ओके, एक स्पीशीज़, हर एक में क्या रहता है, स्पीशीज़ रहता है, एक प्रजाति रहती है. ओके, सो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस. तो स्पीशीज़ में कौन से डिफरेंसेस है, स्पीशीज़ क्या डाइवर्सिटी होती है वो देखते हैं. ओके, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ that are represent in a given community. So the innumerable species of organism occur in the nature. हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है, ऑर्गेनिज्म की बहुत सारे वैराइटीज़ प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की हमारे नेचर में, हमारे बायोडाइवर्सिटी में. सो इन्यूमरेबल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आर नेचर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. ओके, अनेक स्पीशीज़ के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स पाए जाते हैं ये नेचर में. सो दिस ऑल स्पीशीज़ दैट कॉल्ड एज अ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्लूड अ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. ओके, माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उनमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स के प्लांट्स, वेरियस टाइप के एनिमल्स और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते. सो दिस होल डाइवर्सिटी कॉल्ड एज अ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. ओके, स्पीशीज़ में क्या क्या रहता है, प्लांट्स की अलग स्पीशीज़ रहती है, एनिमल्स की अलग स्पीशीज़ है, बर्ड्स की अलग स्पीशीज़ पाए जाते हैं हमारे नेचर में. सो दिस होल स्पीशीज़ कॉल्ड एज अ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. ओके, तो एक ही टाइप की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी नहीं है, उनमें भी बहुत वेरियस टाइप के प्लांट्स है, वेरियस टाइप के एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं.
So this whole diversity called as a species diversity. Next we are going to discussing about the ecosystem diversity. Okay, ecosystem means the interaction between the living and नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं लाइक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनमें एक इंटरैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. तो अब हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है वो देखते हैं. ओके, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब क्या? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डील्स विद द वेरिएशन इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में जो जो वेरिएशंस आते हैं उसमें से वो डील करते हैं विद अ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द एनवायरनमेंट. और इनका ओवरऑल इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे और एनवायरनमेंट के. ओके, तो इकोसिस्टम मतलब पता चला ना. इकोसिस्टम मतलब द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो बायोटिक मतलब क्या? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. तो इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो इंटरैक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. ओके, हम ह्यूमन बींग है लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वाटर की ज़रूरत है. सो वाटर इज अ नॉन लिविंग. ओके, बट हम लिविंग थिंग्स है, मतलब हमारे बीच में क्या है? इंटरैक्शन है. वैसे ही प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग, लेकिन सॉइल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. ओके, तो प्लांट को जब ग्रो होना है तो उनको सॉइल की ज़रूरत है. तो उनमें क्या एक इंटरैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम की द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स. See, many ecosystem are present in each region. Different type of ecosystem, many ecosystem present रहता है each and every region of the earth. Ecosystem is formed through the interaction between the plants, animals, their habitat and the changes in the environment. हैबिटेट तो आपको पता है, जहाँ पर वो रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट. सो इकोसिस्टम जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स रहने की प्लेस जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट. सो इकोसिस्टम कैसी फॉर्म होती है? थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. ओके, ये तीनों में इंटरैक्शन होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और उनके हैबिटेट्स में. एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, मतलब इकोसिस्टम फॉर्म हो गई है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो इंटरैक्शंस है, उनके हैबिटेट में जो इंटरैक्शंस है, उससे होल इकोसिस्टम फॉर्म हो गई है. और ड्यू टू दिस इंटरैक्शन हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? चेंज होता है. ओके, ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर. हर एक इकोसिस्टम में अपने स्पेशल एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं. उन्हें भी संभालना पड़ता है. हर एक इकोसिस्टम के अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स वाली. सो इकोसिस्टम आर ऑल्सो टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो इकोसिस्टम दो टाइप की रहती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब नेचुरल इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, नेचुरली जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल इकोसिस्टम, जहाँ पे कम्युनिटी है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की. एंड ईच कंपोनेंट इंटरैक्ट टुगेदर. ओके, यूनिट ऑफ थ्रू बायोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली. ओके, सो इंटरैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स नेचुरली, दैट कॉल्ड एज अ नेचुरल इकोसिस्टम. देन आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड, मैन मेड जो इकोसिस्टम रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ artificial ecosystem. Okay, so artificial ecosystem is a human made system of plants, animals and people living in area together with their surrounding. Okay, जो ह्यूमन के आजू बाजू में जो प्लांट्स, आर्टिफिशियली एनिमल्स, ओके, वो जो है वो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. लेकिन नेचुरली जो प्रेजेंट है इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल इकोसिस्टम. नेक्स्ट, there should be a positive attitude of human being towards the environment for welfare of entire living world. ये environment के बारे में human being through एक positive attitude होना बहुत ज़रूरी है. दुनिया के बारे में human being के mind में always positive attitude होना चाहिए. So there should be the positive attitude for the environment. प्यार होना चाहिए environment के बारे में. For this purpose following roles are important. Okay, तो आप कंजर्व कौन से रोल है देखते. यू कैन बी अ कंजर्वेटर, ऑर्गेनाइजर, गाइड,
प्लांट फ्रेंड एक्सेट्रा। ओके, तो आप कंजर्वेटर भी हो सकते, एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हो, ऑर्गेनाइजर भी हो सकते हो, आप लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में गाइड भी कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो, एनवायरनमेंट के बारे में गाइड कर सकते हो हम लोगों को कि यूज़ डस्टबिन फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, आप प्लांट फ्रेंड भी हो सकते, प्लांट्स लगाने वाले, प्लांट्स की केयर करने वाले। तो हम सब लोग मिलकर एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते। तो आप इनमें से कौन सा रोल निभाना चाहेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं और अच्छे से निभाने की ट्राई भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर आर अर्थ, ओके, एंड फॉर ऑल्सो आर एनवायरनमेंट। तो आप कंजर्वेटर भी बन सकते हो प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। ओके, कुछ नया न्यू इनोवेशन कर सकते हो, कुछ न्यू ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, प्लांट के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सबको गाइड कर सकते हो अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द प्लांट्स। प्लांट फ्रेंड भी हो सकते हो आप, प्लांट्स लगाना चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये कौन सा भी रोल आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, योर प्लान फॉर द रोल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द स्केरग्रूव्स। ओके, सो देखते हैं क्या है स्केरग्रूव्स। The forest conserved in the name of God and considered to be a scare is called as a scaregrove. Scaregrove means एक पवित्र जंगल होता है जो किसी गॉड के नाम से कंजर्व किया जाता है, उसको गॉड का नाम देते हैं। सो फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड एज अ scaregrove. These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. Okay, तो ये कंजर्वेशन गवर्नमेंट थ्रू नहीं होता है, लेकिन उस समाज के थ्रू कंजर्व किया जाता है सेंचुरीज। वो उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी थ्रू कंजर्व किया जाता है सेंचुरी। ओके, सो कंजर्व सेंचुरी कंजर्व बाय सोसाइटी, सोसाइटी थ्रू कंजर्व किया जाता है, नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एज इट हैज़ बीन कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन। तो अभी ये किसी गॉड के नाम से कंजर्व किया है, दैट्स वाई अभी उसको खास प्रोटेक्शन किया जाता है, बिकॉज वो गॉड के नाम से कंजर्व किया है। दैट्स वाई उनको क्या मिलेगा, अभी स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, सो दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। तो ये क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट हमारे सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही नहीं, तो होल वर्ल्ड कंट्री में है। तो हमारी कल्चर बहुत महान है कि गॉड के नाम से एक फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, गॉड के नाम से क्या होना, लेकिन फॉरेस्ट तो प्रोटेक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड नेम। हर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे ये ब्लड में ही है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हमारे कल्चर का भी एक पार्ट है। ओके, सो स्केरग्रूव जिसको बोलते हैं, जो एक पवित्र जंगल होता है, वो गॉड के नाम से कंजर्व किया जाता है। मोर देन 13,000 scaregroves have been reported in India. Where are such scaregroves in Maharashtra? So हमारे इंडिया में मोर देन 13,000 मीन्स 13,000 से भी ज़्यादा scaregroves प्रेजेंट है इंडिया में। तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे scaregroves प्रेजेंट है। तो स्केरग्रूव मतलब समझा, एक ऐसा फॉरेस्ट जो गॉड के नाम से कंजर्व किया जाता है, और वो गॉड के नाम से कंजर्व है, दैट्स वाई उनको कोई हाथ नहीं लगाता है, वहाँ पर कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। ओके, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ स्केरग्रूव्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट सम सिम्बॉल और लोगो। सी देखते क्या है। Some symbols are given below. Find the meaning of those symbols in relation to environmental conservation and make a list for other such symbol. Okay, you can observe in figure. आपको फर्स्ट सिम्बॉल क्या दिख रहा है कि डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस सिम्बॉल। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस सिम्बॉल। ओके, तो फर्स्ट सिम्बॉल आपको क्या है कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गार्बेज होता है, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, कहीं पर भी रोड में एंड ऑल नहीं डालना चाहिए, इससे पोल्यूशन होता है। तो ये सिंबल ये सब इंडिकेट करता है कचरा सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही डालना चाहिए, कहीं पर भी नहीं। सपोज़ आपने चॉकलेट खाया और सराउंडिंग प्लेस में कहीं पर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, तो वो चॉकलेट का रैपर आप अपने जेब पर रखें, और जब आपको डस्टबिन दिखे तब आप डस्टबिन में डालें। अगर आपको डस्टबिन नहीं देखा तो वो कैरी करना है, रोड पर नहीं डालना है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ड्राई और वेट ऐसे दो डस्टबिन होते हैं। तो
तो ड्राई में ड्राई वाला कचरा डालना चाहिए और वेट वाले में वेट वाला कचरा डालना चाहिए. ओके, सो दिस सिंबल इंडिकेट अस टू यूज़ दी डस्टबिन. नेक्स्ट सिंबल दिख रहा है, दैट इज़ अ सेव एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बचाने का है वो सिंबल. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे. देखो, कोल से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म की जाती है. कई बार हमारे कंट्री में थर्मल पावर स्टेशन में तो कोल चारकोल जलाने से बहुत पोल्यूशन होता है. तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज़ करेंगे, जब नीड है तभी यूज़ करेंगे, तो पोल्यूशन भी कम होगा. ये बताने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी बचाने का सिंबल दिया है. दिस सिंबल इंडिकेट अस टू सेव दी इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट सिंबल वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट दी यूज़ द साइकिल. ओके, नेक्स्ट सिंबल है बाइसिकल का. ओके, दैट सिंबल इज इंडिकेट अस कि साइकिल यूज़ करना चाहिए. साइकिल यूज़ करने से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है और हमारे बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है. जब हम साइकिल चलाते हैं तब हम साइकिल चलाने के लिए मस्कुलर एनर्जी यूज़ करते हैं. इससे हम फिट रहते हैं. तो साइकिल काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए. तो ये सिंबल हम को ये सब इंडिकेट करता है. ओके, सो दिस सिंबल इंडिकेट अस टू यूज़ साइकिल एंड डी कंट्रोल दी पोल्यूशन. एंड ऑल्सो you are conserving your natural resources like पेट्रोल, डीजल. ओके, ये भी सब जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कंजर्व हो सकते हैं साइकिल यूज़ करने से और पोल्यूशन भी कंट्रोल में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट सिंबल इज सेव वाटर. ओके, सेव दी वाटर, कंजर्व दी वाटर. ये सिंबल हमें इंडिकेट करता है कि वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर अर्थ. तो वो वाटर हमें बचाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर इज़ ए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी. वाटर सेव होगा तो ही सबकी लाइफ सेव होगी. अगर पानी ना हो तो कुछ नहीं कर सकते हम, जिंदगी भी नहीं रहेगी हमारी. दैट्स वाई वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो दिस सिंबल इंडिकेट अस टू सेव वाटर एंड दी सेव लाइफ. नेक्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व. हम ये कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सब सीख रहे, लेकिन हाउ कैन डू दिस, हमें कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी टू बी कंजर्व देखते. फर्स्ट इज अ प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो रेयर स्पीशीज़ है, जो कम पाई जाती है स्पीशीज़, उनके ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, मतलब अभयारण्य होते हैं, उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, उनको चलाना चाहिए. ओके, खास एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए ऐसे नेशनल पार्क ओपन करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए, बर्ड सेंचुरी ओपन करना चाहिए. ओके, देन डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायो रिजर्व. कुछ रीजन को हमारे कंट्री के बायो रिजर्व डिक्लेयर करना. वहाँ पे सिर्फ नेचर का ही राज्य होगा, ह्यूमन बींग वहाँ पर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो ऐसे सम रीजन्स बायो रिजर्व ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज अ प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज़. तो जो स्पेशल स्पीशीज़ है, जो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स करवाना. देन कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करके रखना ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो. देन ऑब्जर्विंग द रूल्स. जो भी रूल्स है, लॉज है, उनको फॉलो करना, ऑब्जर्व करना. एंड द लास्ट वन इज़ अ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो मेंटेन करना. ओके, समझा क्या क्या करना है. रेयर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है. देन नेशनल पार्क, सेंचुरीज वो स्थापित करना है, इस्टेब्लिश करना है. ओके, देन कुछ ऐसे रीजन्स रखने हैं, डिक्लेयर करने की वो बायो रिजर्व से, वहाँ पे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही रहेंगे, ह्यूमन बींग वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे. देन ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाना, स्पेशल स्पीशीज़ के लिए उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स करवाना. देन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उनको क्या करना, कंजर्व करना ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो. और जो भी अबाउट द एनवायरनमेंट एक्ट हो गए, लॉज हो गए, ओके, उनको अच्छे से फॉलो करना. एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज का मेंटेन भी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. ओके, सो इससे यूज़ करके हम हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या कर सकते हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन,
Till now we have studied the rules and regulation about the environmental conservation and protection in this lesson. अभी तक हमने स्टडी किया है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. अभी बहुत सारे अवेयरनेस हो गए हैं अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में. तो ये लेसन में हमने एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सब सीखा है. Many people in the society are voluntarily coming together to perform this noble work. तो हमारे सोसाइटी और कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वॉलेंटरली एक हो गए हैं टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क. ये जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का नोबल वर्क है वो परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोग एक हो गए हैं. Many institutes at state, national and international level are involved in this week. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इन्वॉल्व हो गए हैं ये वर्क में और परफॉर्म कर रहे दिस नोबल वर्क. तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो वो कौन से हैं और वो कहाँ पे है वो देखते. ओके, फर्स्ट इज़ अ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी जो मुंबई में है. नेक्स्ट वन इज़ अ CPR एनवायरमेंट ग्रुप इन न्यू चेन्नई. देन गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंटल सेल दिल्ली. ओके, then next voluntary organization is a चिपको सेंटर तेरी गरहावल. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. ओके, सो दिस चिपको सेंटर्स इज प्रेजेंट इन अ तेरी गरहावल. देन सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद. देन केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम. देन इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन इन पुणे. Then Vikram Sarabhai Community Science Center Ahmedabad. Okay, so these all are voluntary organization. Next we are going to discussing the International Environment Organization. Okay, so देखते हैं वो कौन से है. Okay, first is the International Union for Conservation of Nature IUCN Glenfiddich Switzerland. Intergovernmental Panel on Climate Changes IPCC Geneva. Then United Nations Environmental Program Geneva. Next is the World Wildlife Fund New York. Then BirdLife International Cambridge. And then Green Climate Fund Songdo as Korea. Okay, so these all are International Environment Organization. Okay, ये सब क्या है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. और हमने पहले स्लाइड पे पढ़ा था वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन था. सो द नेक्स्ट इज ग्रीन पीस इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनवायरमेंट एक्टिविटीज़. ग्रीन पीस ये वर्ल्ड में से लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के. और मोर देन 25 lakhs पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो 25 लाख से ज़्यादा पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ क्या है, मेंबर बन गए हैं दिस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. देखते हैं वो क्या है. ओके, प्रीवियसली अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था बट अभी फिर बार इसकी ज़रूरत है और कुछ पॉइंट्स बताने हैं. सो देखते क्या है. Radioactive pollution can occur due to two reasons, as a natural और artificial. Okay, so ये जो radioactive pollution है वो two reason से होता है. First is a natural और second one is a artificial radioactive pollution. Okay, then UV and IR radiations are natural radiations where X-ray and radiations from atomic energy plants are artificial radiations. देखो, एटॉमिक एनर्जी प्लांट में और एक्सरे में थ्रू रेडिएशंस छोड़े जाते हैं. एटॉमिक एनर्जी प्लांट में और एक्सरे थ्रू रेडिएशंस छोड़े जाते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज तो सन थ्रू छोड़े जाते हैं. ये जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के. और ये है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज लाइक एक्सरे एंड ऑल. या फिर जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, तब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है. तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के दो है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो नेचुरल कौन से रहेगा, यूवी एंड IR रेडिएशन जो सन थ्रू छोड़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल रेडिएशन. और एक्सरे रेडिएशन और एटॉमिक एनर्जी जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल रेडिएशन. तो आपने पूछा कि नेचुरल
रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कौन सा है, तो यूवी और आईआर रेडिएशन जो सन थ्रू छोड़ा जाता है, और एक्सरे रेडिएशंस एंड एटॉमिक एनर्जी वो क्या है, आर्टिफिशियल रेडिएशन है। ओके, देन चर्नोबाइल। ओके, चर्नोबाइल नाम का रशिया में प्लांट था, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया था। So Chernobyl, Windscale and 3 Miles Island Mishap are the major mishap for the world till present। ये सब एक्सीडेंट हो गए थे जापान में, जो एक न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पर सुनामी आ गई थी, भूकंप हो गया था, उससे कारण भी काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैल गया था। ओके, सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। ओके, सो ये एक्सीडेंट हो गया था तो उनमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल अफेक्ट हो गए थे। ओके, तो अभी हम देखते हैं सम इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ओके, सम इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस आर एज फॉलो। फर्स्ट इज अ कैंसरस अल्सरेशन ऑकर ड्यू टू हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरे। ओके, ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर हो गया था तो उस रीज़न से कैंसर डेवलप हो सकता है, मतलब ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर हो जाता है तो उस रीज़न से कैंसर डेवलप हो सकता है। देन टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉय, हमारे बहुत सारे टिश्यू सेल्स मर जाते हैं, बॉडी में हार्मफुल होता है रेडियो एक्टिव, तो फिर वो सह नहीं पाते। देन जेनेटिक चेंजेस ऑकर, म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे चलते रहते हैं। अमेरिका ने जापान पर जब बॉम्ब फेंका था तो आज भी जापान में जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेनेटिकली म्यूटेड होते हैं। ओके, विजन इज अ एडवर्सली अफेक्ट, हमारी नज़र पर भी परिणाम होता रहता है। ओके, सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के क्या है, सब साइड इफेक्ट्स है। ओके, क्या क्या होता है, कैंसरस अल्सरेशंस ऑकर होता है, क्यों, एक्सरे की वजह से, एक्सरे का जो रेडिएशंस होता है उसकी वजह से। देन हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं, और हमारा विजन भी कैसा होता है, अफेक्ट होता है, हमारे विजन में भी, हमारे नज़र पर भी क्या होता है, परिणाम होता है। थैंक यू।